Welcome to session 2 of Basic Principles of Accounting. Students, today we'll cover accounting terms and accrual system of accounting. As we discussed in the last session also, there were some accounting terms. So in continuation with that, there are more accounting terms to be discussed, and today we'll discuss the systems of accounting, that is accrual system and cash system of accounting. So in continuation with the session 1, now we'll discuss some of the accounting terms which includes purchases. Purchases means the goods that is purchased by the business. अब कोई भी बिज़नेस शुरू किया है, बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको कुछ गुड्स परचेज़ करनी पड़ेगी, तभी आप सेल कर पाएंगे, तभी बिज़नेस भी कुछ परचेज़ करता है. If the business purchase goods, that will be termed as purchases, not goods only, right? So the term purchases is used only for the purchase of goods. So goods are those things which are purchased for resale or for producing the finished goods which are meant to be sold. Goods, ये वो गुड्स होंगी, परचेजेस में वही गुड्स इंक्लूड होंगी जो कि बिज़नेस आगे बेचने के लिए, आगे बिज़नेस सेल करने के लिए परचेज करेगा. सो गुड्स जो है वो कैश बेसिस पे भी परचेज की जा सकती हैं और क्रेडिट बेसिस पे भी परचेज की जा सकती हैं. If the business go with the cash of if the business purchases goods on cash basis, that will be termed as cash purchases, and if the goods are purchased on credit basis, those goods will be termed as credit purchases. So purchases में दोनों types की purchase include होती है, cash purchases as well as credit purchases. So next is the sale. When business purchases goods for resale purpose, then is the term sale arises. Sale means the goods, sale is used for the sale of goods only. Goods, same is the case with the sales also. Goods can be sold on cash basis as well as on credit basis. It can be sold on credit basis. So when the goods are sold on cash basis, those sale will be termed as cash sales. But if goods sold are on credit basis, those sale will be termed as credit sale. So similarly, sales include both cash as well as credit. So cash sales and credit sales are included under sales account. Now comes to stock. It's a very important term. इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बट देर इज़ नो नीड टू कन्फ्यूजन. स्टॉक मीन्स कि जितनी भी गुड्स आपकी अनसोल्ड वेयर हाउस में पड़ी हैं वो सब हमारा स्टॉक होती हैं. स्टॉक मीन्स द गुड्स दैट आर लाइंग अनसोल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट. किसी भी पर्टिकुलर डेट पे अगर आप चेक करना चाहे कि हमारा स्टॉक कितना है, तो जितना भी हमारा अनसोल्ड गुड्स होगी वो सब स्टॉक की कैटेगरी में आएगी. सो स्टॉक इज़ वैल्यूड ऑन कॉस्ट बेसिस. जितने पे स्टॉक को परचेज किया गया है, जिस कॉस्ट पे स्टॉक को परचेज किया गया है, वो होगा वैल्यूड ऑन स्टॉक एंड मार्केट प्राइस. तो स्टॉक की जो वैल्यूएशन की जाती है वो कॉस्ट को और मार्केट प्राइस को कंपेयर किया जाता है, और इनमें से जो कम वैल्यू होती है उसके ऊपर हम वैल्यू करते हैं स्टॉक को. सो स्टॉक जो होता है ये हमारा दो तरीके का हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक का मतलब है कि जब हम बुक्स बनाना शुरू करते हैं या अकाउंटिंग ईयर जब स्टार्ट होता है, उस टाइम पे बैलेंस हमारा कितना अवेलेबल है, स्टॉक का बैलेंस कितना अवेलेबल है, दैट इज़ ओपनिंग स्टॉक. द गुड्स which are unsold in the beginning of the year, that will be termed as opening stock. And closing stock means कि at the end of the accounting period कितना हमारा unsold stock, unsold goods बचा हुआ है, that is closing stock. That means opening stock means in the beginning of the year, unsold goods which are in the beginning of the accounting year, and closing stock means
goods, unsold goods at the end of the accounting year. Now we have to understand the losses. Losses means कि जहाँ से बिजनेस को कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है. लॉस इज समथिंग अगेंस्ट विच द बिजनेस रिसीव्स नो बेनिफिट. कोई बेनिफिट नहीं हो रहा बिजनेस को तो हम उसको बोलेंगे लॉस. जब कहीं से कुछ रेवेन्यू नहीं आ रहा है दैट मीन्स दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज लॉस. सो लॉस किसी भी तरीके से हो सकता है. लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर. दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज लॉस. नाउ कम्स टू ड्राइंग्स. ड्राइंग्स देखिए, ड्राइंग्स ये वो अमाउंट है जो कि प्रोप्राइटर या ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से विड्रॉ करता है. दैट इज टर्म्ड एज ड्राइंग्स. इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़. अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर करने के लिए जितना भी अमाउंट प्रोप्राइटर बिजनेस में से विड्रॉ करेगा वो ड्राइंग्स की कैटेगरी में आता है. एंड that is what we call it as drawings. Now comes to discount. अब देखिए डिस्काउंट क्या है. हम शॉपिंग करने जाते हैं तो सेलर्स डिस्काउंट देते हैं, राइट. सो डिस्काउंट व्हेन द कस्टमर्स आर अलाउड एनी डिडक्शन. डिस्काउंट का मतलब ये है कि कुछ भी जैसी चीज़ हम परचेज करते हैं अगर उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट है तो जो एक्चुअल प्राइस होता है उससे हमें कम प्राइस पे करना होता है. So that is the benefit given to the customer by the business. That is termed as discount. When the customers are allowed any deduction or allowance from an amount due, that is called discount. So discount payable क्या होगा, ये एक expense होता है organization का, जबकि where discount received is an income. Discount payable कब होगा, जब business अपने customers को discount allow करते हैं. That is discount payable and it will be termed as the expense for the business. While on the other hand discount received means when the business purchases goods from its suppliers. Sometimes supplier they also give discounts for the goods supplied. So that means here यहाँ पर बिजनेस को जो एक्चुअल अमाउंट है उससे कम अमाउंट पे करना होगा. तो उस केस में क्या है कि बिजनेस को इनकम हो रहा है. दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड. व्हेन द बिजनेस रिसीव डिस्काउंट फ्रॉम इट्स सप्लायर विल बी डिस्काउंट रिसीव्ड एंड इट विल बी एन इनकम. On the other side, if it allowed to the customer, it will be an expense for the firm. Now comes to, there are two categories of discount. दो तरीके से डिस्काउंट अलाउ किया जाता है. There are two types of discount, trade discount and cash discount. Trade discount is basically when some discount is allowed in the prices of goods on the basis of the sale of item. ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, ये लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है. ऑन द अदर साइड कैश डिस्काउंट जो है वो क्विक पेमेंट रिसीव करने के लिए दिया जाता है कस्टमर्स को. सो व्हेन डेटर्स दे आर अलाउड सम डिस्काउंट इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स फॉर क्विक पेमेंट, ताकि वहाँ से कस्टमर्स के पास से हमें जल्दी पेमेंट मिल जाए, तो वहाँ पर हम कैश डिस्काउंट यूज़ करते हैं and it will be shown in accounting books. Next is solvent. Solvent, as the name indicates, solvent means a person who is in a position to pay his debts. Solvent और insolvent हम कब यूज़ करते हैं, जब कंपनी के ऊपर कुछ लोन है या नहीं है. अगर कंपनी के ऊपर लोन नहीं है और लोन है बट कंपनी इस पोजीशन में है कि उस लोन की रीपेमेंट कर सकती है, उसकी टाइमली इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकती है, तो उस केस को हम बोलेंगे दैट द कंपनी इज सॉल्वेंट और द बिजनेस इज सॉल्वेंट. दैट मीन्स नाउ द बिजनेस इज एबल टू पे हिज डेट्स as and when it becomes due. On the other hand side, इंसॉल्वेंसी पोजीशन ये वो पोजीशन होती है जहाँ पर कंपनी के ऊपर डेट्स पाइल अप होते रहते हैं लेकिन कंपनी जो है उसको पे नहीं कर पाती. सो दैट इज इंसॉल्वेंस. अ पर्सन हु इज नॉट इन सच अ पोजीशन टू पे हिज डेट्स
आफ्टर दे बिकम ड्यू होने के बाद भी कंपनी अपने डेट्स की पेमेंट नहीं कर पाती, तो उसको हम बोलेंगे इंसॉल्वेंट। नाउ कम्स टू बैड डेट्स। बैड डेट्स बेसिकली उस केस में आता है जब कंपनी अपने कस्टमर्स को सेल करती है, बेसिकली क्रेडिट सेल करती है। अगर समटाइम्स कंपनी sold goods on credit basis, some customers pay them back but some customers do not pay. So when customers or the debtors they fail to pay their dues either partially or completely, so that is what, वहाँ से अब हमारे पास कोई पैसा नहीं आने वाला, तो वो अमाउंट क्या हो जाएगा, बैड डेट्स। सो बैड डेट्स क्या होगा, बैड डेट्स विल बी अ लॉस टू द फर्म, इट इज़ ए लॉस टू द बिजनेस। नाउ कम्स टू परचेज रिटर्न। अब देखिए परचेज रिटर्न क्या है। परचेज रिटर्न, जब बिजनेस कुछ परचेज करेगा, गुड्स परचेज होंगी, तो उस केस में कुछ डिफेक्टिव गुड्स भी हो सकती है, तो उस केस में क्या होगा, बिजनेस विल हैव टू रिटर्न दोज गुड्स टू द सप्लायर्स, सो दैट विल बी टर्म्ड एज परचेज रिटर्न। और इसको हम कोई और नाम से भी बोलते हैं, दैट इज व्हाट, रिटर्न आउटवर्ड, right? So that is what return outward or purchase return, we can use both the terms in the same manner. Next is the reserves for bad debts or provision for bad debts. अब देखिए रिजर्व फॉर बैड डेट्स क्या है और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या है। अ रिजर्व फ्रॉम प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस इज क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। हम किसी नोन लायबिलिटी को मीट आउट करने के लिए हम उसके लिए प्रोविज़न बना सकते हैं, और ये प्रोविज़न जो बनाया जाता है या ये जो रिज़र्व रखा जाता है, ये बिजनेस के प्रॉफिट्स में से क्रिएट किया जाता है। सो वी कैन क्रिएट प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। सो वी नो कि हमारे कुछ लॉसेस हो सकते हैं फ्यूचर में, कुछ ऐसे डेटर्स और कस्टमर्स हो सकते हैं जो हमें पैसा रिटर्न ना करें, तो उसके लिए हम क्रिएट कर सकते हैं प्रोविज़न एंड इट विल बी अ लायबिलिटी फॉर द फर्म। नेक्स्ट इज द वेजेस। वेजेस आर जो भी लेबर्स हमारे बिजनेस में लगे रहते हैं उनको रेम्यूनरेशन पे किया जाता है, तो वो क्या होगा, वेजेस। The remuneration paid to the laborers in a factory, जो मशीन्स पे काम कर रहे हैं, मशीनरी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में इन्वॉल्व हैं, तो दे विल बी द रेम्यूनरेशन फॉर देयर सर्विसेज विल बी टर्म्ड एज वेजेस। नाउ नेक्स्ट इज द सैलरी। सैलरी इज इट इज पेड टू द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में इन्वॉल्व रहते हैं एम्प्लॉयज़, दोज विल बी गिवन विद द सैलरी। लाइक हम सुपरवाइज़र की सैलरी देते हैं, तो दैट विल बी सैलरी। नाउ इज द सेल्स रिटर्न। समटाइम्स वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड customers they will return back the goods because of its defectiveness. So defective goods will be returned by the customer. Those will be sales return, or we can call it as return inward. Next important term is the profit. प्रॉफिट ये वो टर्म है जिसके लिए बिजनेस काम करता है। बिजनेस स्टार्ट ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए किया जाता है। प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा बिजनेस, तभी वो बिजनेस फ्लरिश कर सकता है। सो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब पे करने के बाद जो सरप्लस अमाउंट बचता है बिजनेस के पास, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रॉफिट। So after paying all the losses, all the expenses which is related with the business, like interest payment है, rent payment है, ये सब expenses, electricity bill है, other office expenses है, depreciation, ये सभी expenses pay करने के बाद जो भी amount business के account में बचता है, profit and loss account में बचता है, that will be termed as profit. It is a gain, that's why we will consider it as nominal account. Now is the brokerage or the commission.
ब्रोकरेज क्या है, कमीशन क्या है, कि जिस भी ब्रोकर को या कमीशन एजेंट को हम कमीशन पे करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स पर्सन doing business or he's doing work on behalf of business and sold goods. So when he sold goods, he will be charged with commission, he will be paid with the commission. So when we pay commission, that will be an expense for the business. Now comes to the two systems of accounting. दैट मीन्स अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए हम दो सिस्टम्स मेंटेन कर सकते हैं, दो सिस्टम्स के थ्रू हम अकाउंट्स बना सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास दो सिस्टम जो है वो है कैश सिस्टम एंड एक्रूअल सिस्टम. कैश सिस्टम में वही रेवेन्यूज़ या वही इनकम्स या वही एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कैश इन्वॉल्व करते हैं. दैट मीन्स कि जो एक्चुअल में कैश पेमेंट की जाती है या कैश में इनकम रिसीव की जाती है वही रिकॉर्ड होंगी अकॉर्डिंग टू द कैश सिस्टम. पार्शियल पेमेंट हुई है तो वो चीज़ हम ट्रैक नहीं कर सकते कैश सिस्टम में. सो रेवेन्यूज़ आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर रिसीव्ड विच मे बी बिफोर और आफ्टर दे आर अर्नड. एक्चुअल में जब हम रेवेन्यू रिसीव करते हैं या एक्चुअली जब एक्सपेंसेस पे करते हैं तभी हम अपनी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं एज पर द कैश सिस्टम. ऑन द अदर साइड एक्रूअल सिस्टम इज टोटली ऑपोजिट टू द कैश सिस्टम. एक्रूअल सिस्टम में सभी पेबल्स या सभी रिसीवेबल्स भी रिकॉर्ड की जाती हैं. मीन्स एज एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन बिकम्स ड्यू they are recorded in accounting books as per the accrual system. जो कि आज की डेट में जो बिज़नेस सिनेरियो है, बिज़नेस एनवायरनमेंट है, वो हमारा एक्रूअल सिस्टम ही फॉलो करता है. एक्रूअल सिस्टम क्यों फॉलो किया जाता है? क्योंकि बिज़नेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं और मोस्टली जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बिज़नेस में वो क्रेडिट बेसिस पे होती हैं. तो अगर हमारे पास कैश नहीं आ रहा तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम क्रेडिट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे. वी हैव टू रिकॉर्ड credit transactions also. So normally the business follows accrual systems of accounting. So student, today by this we are ending our session. In the last of these slides we have questions to answer. Here in the first question you have to define certain terms. These are very simple terms and you can easily define, that are sales, drawings, bad debts and wages. And second thing is you have to explain the accrual system of accounting. So student, this is all about from my side. Thank you very much.